Hi guys, I hope you are all doing good. Today I'm going to talk on a topic, life after an MBA. So like as we all know that I am a recent MBA graduate who just came out from college and joined the corporate, and now my life is going on. I'm working as an at a XYZ company, uh, and it's going, yeah, good. So like now we have to know that what are the differences you can see after an MBA, and how it was before when we were in college. So it's really it's totally different, because now you know that you have a time limit. Everything you have to do on time. You cannot say that, yeah, I will postpone the work, or I will do it later or tomorrow. No, it's not like that. Whatever you guys are whatever the task is assigned to you, you have to do it at a time. You cannot just ignore it and postpone it and do it later. So that is the most, like, that is just about, I'm talking about corporate like experience. And like if you see, no, small things, like suppose there were a time when uh, when mothers cook food for us, and we say no that, mom, it the mummy, the chapati or roti size is so big, it's so thick, please cook so thin and so soft chapati, and please provide like that. And we in that also we do something like, salt is not there in vegetables or in sabji. We simply just go and say no, कि मम्मी खाने में नमक कम है, या मम्मी रोटी थोड़ा वैसा बना है, ऐसा बना है. और नाउ यू सी, नाउ एक्चुअली आई एम ईटिंग आउटसाइड in hotel, like dhaba, hotel, whatever you guys can call them. There I am eating. So there, you know, they are taking amount. In that also they are providing just 4 chapatis, you know. In that I am survived. But I actually I take after that. In like they give here thalis. In thali they, like, there are 80 rupees thali, 100 rupees, 120 rupees. In that they give 4 chapatis, or sometimes in 100 rupees 5 chapatis. दैट ऑल्सो सो थिन, बहुत छोटी रहती हैं यार, बहुत छोटी रहती हैं. मेरा तो यार उसमें पेट ही नहीं भरता हूँ, मैं थोड़ा ज़्यादा खाता हूँ. मुझे कम से कम 8-10 रोटी चाहिए. अगर एक हिसाब की रोटी है तो मिनिमम 8 चाहिए. तो जैसे बहुत छोटी है तो यार मिनिमम 9 to 10 चाहिए. ठीक है, तो मैं भाई खाता हूँ तो मेरा एक्स्ट्रा चार्ज लगता है. तो मैं वही देख रहा हूँ. आई एम जस्ट सीइंग दैट ओनली. लाइक देर वॉज अ टाइम व्हेन वी यूज्ड टू से टू मम्मी, मम्मी ऐसा है वैसा है. और आज देखिए आप, जैसा भी ये सब कुछ है आप खा रहे हैं, यू नो. सो this is life after an MBA, you know. When you guys are graduate, no, so you have, now your life is going to start, like the struggles, whatever you guys are going to see, the challenges you guys are going to face. It's right now. It's now that now you guys have a time that you are going to face. See, that's why we say, like, sometimes your friends, seniors, whoever you met who give a good advice, they say no, that in college there, वही समय वही इन्जॉय कीजिए. आपको जो करना है, एक्सप्लोर करना है, इन्जॉय करना है, क्योंकि उसके बाद ना आपको पास टाइम नहीं मिलेगा. एंड दैट इज़ ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू. आई कंटिन्यूसली से यू गाइज दैट प्लीज़, वॉट एवर you are doing, please do it 100% in your college. Like if you want to explore different careers, different things, please go participate in college co-curricular activities and showcase yourself, who you are and what are the different capabilities you have, that you can do it. You know, you have to lead the team also in college. Like they say no, please don't participate in such activities, please don't participate in clubs and all. No, it's not good. You know, when you guys are participating in college activities, no, there it comes, there you can see your leadership skill, you can show your leader skill. Then there you can learn that how to lead a team, how you can manage employees. Because at that time when you will learn, know how you have to talk to others, and what are the different skills that you have to show them. That, like, there will be seniors, juniors, and colleague, batchmates, to how you are going to talk with them, and what are the different skills you will show them, that they will obey your words. They will, whatever you tell them, they will do it. So it's depend on you, know, that you have to showcase your skills, that yeah, please guys do it, that, like that.
So I just wanted to say that when you are in college, no guys, please, it's my humble request from you all, just go and explore everything in college. Like if you are in any college, like you can see what are the difference between IIMs and tier 3, tier 2 colleges. You know, I in my opinion, that is the difference, because when we are in college, no, we are not taking it seriously. Like we just waste time like sitting. Don't sit, just go. At least if you are not studying, no, just please, it's my humble request, just go to participate in college activities, co-curricular activities. There are different types of clubs. Go and become president of that club or coordinator of that club. Like small things are there. No, please go and participate. Like that is the time when you can showcase your skill. Please go for travel and make good friends. That, because after college, no, you guys are not going to make a friends. You guys are going to make colleagues. They're colleagues. They are not your friends. So please अंडरस्टैंड दैट. सो जैसे 10th होता है, 12th होता है, 12th के बाद कॉलेज होता है, कॉलेज के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन होता है. तो आपके जो कॉलेज और पोस्ट ग्रेजुएशन के दोस्त हैं, समझ रहे हैं, तो वो लोग, और जो मतलब आपके 10th से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन के दोस्त हैं, आप उन्हीं से कनेक्ट कर सकते हैं. वही आपकी लाइफ में एक दूसरे के हालचाल पूछेंगे. जैसे कि फिर टाइम होता है, 10th 12th से दूरी होती है, फिर कॉलेज के आते हैं, फिर कॉलेज से दूरी होती है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन. लेकिन एक चीज़ यहाँ कॉमन कि आप कभी भी उनसे कनेक्ट करेंगे और आप उनसे बात ऐसा दोस्त करेंगे, समझ रहे हैं, तो वहाँ कलीग नहीं रहेंगे. लेकिन आफ्टर एन MBA, व्हेन यू गाइज आर टॉकिंग विद अदर्स, यू कैन नॉट बी ओपन टू योर सेल्फ, ओपन टू देम. आप अपना दिल की बात उनसे नहीं कह सकते. इट्स कॉर्पोरेट. जैसे बोला भी जाता है कि आपको कभी ना ऐसा नहीं करना होता है कॉर्पोरेट में, किसी को दोस्त नहीं बनाना पड़ता है ऐसा. देखिए वो अपना ओपिनियन है. वो मैं इस टॉपिक पे कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि अभी मेरा स्टार्टिंग है, तो मेरे पास ज़्यादा अभी एक्सपीरियंस नहीं है. लेकिन जो भी है, देखिए कुछ हुआ है तो तभी ऐसा कहा गया है. लेकिन मेरा ये मानना है, सिर्फ मैं जो जूनियर्स हैं या जो मतलब अभी कॉलेज में हैं उनसे यही करूँगा. और जैसे कि प्लीज़ आप लोग ना अपने आप को दिखाइए कि आप कौन है. कॉलेज में जब आप छोटे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. चाहे वो आप डांस करते हैं या डांसिंग में पार्टिसिपेट करें, सिंगिंग में या किसी चीज़ में भी आप पार्टिसिपेट करते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. आपको बाद में क्या रिग्रेट भी नहीं होता है कि काश मैं उस समय ये कर लेता, काश मैं उस समय ये कर लेता. तो काश शब्द है ना, ये सबसे बुरा शब्द है. आपको पता है, इन माई ओपिनियन, काश शब्द से बुरा शब्द कुछ नहीं. क्योंकि क्यों नहीं किया आपने उस टाइम पे, वो आपकी गलती हुई ना, आपने क्यों नहीं किया, समझ रहे हैं. आपको सब कुछ करना चाहिए. अगर आप कॉलेज में है ना, तो आपको एक्सप्लोर करना है. You guys have lot of time that whatever you guys have to do, you can do at that time. You can learn different skills, you can go and travel, you can make good friends, make bonding with teachers. That also plays the important role. And you can explore. There is lot of things, there are much things which will help you. Like if you want to do acting, drama, fashion, whatever you want to do, like be positive, do everything, give your 100%, show consistency in your work. That plays the important role. Until and unless if you are not going and doing, it's not going to happen. Like if you assume I will do tomorrow, या आपने प्लान भी बना लिया, सब कर लिया, लेकिन आप इम्प्लीमेंट ही नहीं करेंगे ना, तो कभी नहीं होगा. ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. तो आपको ना हमेशा करना पड़ेगा यार. मैं सिर्फ आप लोगों से ये कहूँगा, गाइस, बी पॉजिटिव, बी एनर्जेटिक. कॉलेज इज़ द प्लेस like where you are the king, bro. Like अगर आप देखिए, अगर आपका गोल है एम है, तो आप लोग ना उस हिसाब से चलेंगे. भाई आपको ना सब कुछ करना चाहिए. कॉलेज जैसा टाइम कहीं नहीं आता है, क्योंकि कॉलेज में ना आपके पास बाउंड्रीज नहीं होती हैं. स्कूल में आपके पास बाउंड्रीज होती हैं, आपको पता. तभी कहते हैं कॉलेज होता है. कैसा भी कॉलेज हो, कभी आपको ये नहीं बोलना चाहिए tier 3 है, tier 4 है. जैसा भी कॉलेज है भाई, आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है. अगर आप कॉलेज कुछ नहीं करा रहा है, तो आप अदर जगह जाइए, वहाँ पे अपना नेटवर्क बनाइए, पार्टिसिपेट कीजिए, इंटर्नशिप कीजिए. और मैं आप लोगों से एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट कहूँगा, अगर आप कॉर्पोरेट में काम करने जा रहे हैं, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप जितनी सारी इंटर्नशिप कर सकते हैं, आप प्लीज़ कीजिए. अगर पैसा नहीं भी मिल रहा है इंटर्नशिप में, पेड नहीं है, तो भी कीजिए. क्योंकि इंटर्नशिप ना आपको वो चीज़ प्रोवाइड करेगी जो एक पैसे से कंपेयर नहीं कर सकते. क्योंकि जब आपको प्लेसमेंट में बैठेंगे, प्लेसमेंट के बाद ज्वाइन करेंगे ना, तो जब आप कंपनी ज्वाइन करते हो, वहाँ पे मेन क्या होता है ना, आप क्या सीख के आए हैं. जब जो आप इंटर्नशिप में सीख के आए होंगे ना, तो उससे ना आपको बहुत इम्प्रूवमेंट मिलेगा. क्योंकि क्या होता है, मान लीजिए अगर आपने इंटर्नशिप रिटेल में की है,
और आपको अगर कोई कंपनी आपको ले जाती है और वो रिटेल की ही रहती है XYZ कंपनी, तो आपको वहाँ पे बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि आपको ना बेसिक चीज़ें ही पता हैं। फिर आप ना एक लीडरशिप रोल पे जाएंगे। इंटर्नशिप में क्या होता है, आप एक स्टाफ मेंबर होते हैं या मतलब बिगनर होते हैं, लेकिन जब आप कंपनी से जाते हैं तो आपको एक बड़ी पोजीशन, जैसे क्या होता है ना, रिटेल में स्टोर मैनेजर की पोस्ट होती है, ABM की पोस्ट होती है, तो वो एक्सपीरियंस में मिलती है। लेकिन जब आप कंपनी से जाएंगे तो देखिए आपको SM के रोल पे भी लिया जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होगा ना, आप स्टार्टिंग ही एक बहुत अच्छी तरह करेंगे और आपको क्या बेनिफिट ये मिलेगा कि जब आप कर रहे हैं ना तो आपको ऑलरेडी सब कुछ आता है, बस आपको अब टीम को मैनेज करना है, तो ये फ़ायदा होता है। ये मेरा ओपिनियन है। तो प्लीज़ गाइस, प्लीज़ जाइए, पार्टिसिपेट कीजिए। एक आप लोग ना अपने आप को दर्शाइए आप हैं कौन। दैट प्लेज द मेन रोल, दैट्स ऑल। कुछ भी कहो, आप अपने आप की ना वैल्यू आप अपने आप को दिखाइए कि आप क्या क्या कर सकते हैं। तो वो समय ना सिर्फ आपको कॉलेज में मिलता है, कॉलेज के सिवा कहीं नहीं मिलता है। आप जब घर में रहते हैं तो घर के कामों में रहते हैं, ठीक है, वो भी ज़रूरी है। लेकिन कॉलेज में जब आप हैं ना, तो कॉलेज में ये सोच के जाइए कि आज आप या तो कुछ नया सीखेंगे या तो कुछ आप नया करेंगे, समझ रहे हैं। वो इम्पोर्टेंट, टाइम वेस्ट मत कीजिए। जैसे कि कॉलेज में आप कॉलेज ही नहीं जा रहे हैं, रूम पे हैं या PG में हैं या घर पे, तो लेटिए मत यार, घूमिए, कुछ तो कीजिए, गेमिंग कीजिए, कुछ कीजिए जो प्रोडक्टिव हो, ठीक है। घूमिए, दोस्त बनाइए भाई। बस ये कि टाइम वेस्ट मत कीजिए। इसको जैसे कोई कहता है भाई पढ़ाई करो, पढ़ाई करोगे, नहीं भाई, डोंट डू स्टडीज एट ऑल द टाइम। आई डोंट प्रिफर टू स्टडी होल टाइम। In my dictionary there is no word like that, please study 18 to 20 hours. See, it's depend on this need, you know. If you are studying for if you are preparing for government exam, then it's almost necessary, you know. You cannot deny that. But like suppose you are not going to prepare for government exam, then also you are studying 20 hours, and that is not productive. Then what is the use? Like if you are studying for 20 hours, in that you just 10 hours you are doing, it is like 5 years you are doing just roaming here, and then that 5 years you are, in 5 years you are doing 2.5 hours studying serious, just keeping your notes in front of you, just keeping your books and telling that yeah, I am studying 24 hours. That is not going to help you in your career or in your future. So like, be true to yourself. You have to know that whatever you guys are doing, it's almost for you, not for others. That is the thing which I am going to tell you guys. So please be like confident. See, after communication, no, the first thing is confidence, then second thing is communication. When you are confident, you can communicate properly. If you are not confident, then when you are going to communicate also, no, it's not going to show that much you can say that effort, and you cannot communicate properly, you know. The energy, the vibes won't be matching. So that are the like my opinions, my views. सो बस यही कहूँगा कि आप लोग ना कॉलेज समझिए कि एक वो चीज़ है जो आपको ना पूरा बदल सकती है। आप जितना पॉजिटिव पार्टिसिपेटिव रहेंगे ना, आप उतना कुछ सीखेंगे। और लाइफ में मेरा ये मानना, आप जितना सीखते हैं तो वही आपके काम आता है। अदर देन दैट कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपके हमेशा काम आएगा। अगर आपने कोई प्रोडक्ट लिया, उसकी भी एक एंड लाइफ है, लेकिन जब आप कुछ सीखते हैं ना, उसकी लाइफ नहीं होती, वो इन्फिनिटी है, मतलब उसका कोई अंत नहीं है, अनंत है वो, समझ रहे हैं। तो ये मेरा मानना है। देखिए, कॉलेज वो समंदर है जिसकी गहराई में आप जाएंगे ना तो आप कभी पता नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हैं। सीखने में, एक्सप्लोर करने में, मैं उस सेंस में आपको कह रहा हूँ, उस कॉन्टेक्स्ट में आपको कह रहा हूँ, क्योंकि कॉलेज जैसा कुछ भी नहीं है। कॉलेज इज़ कॉलेज यार, कॉलेज जैसी लाइफ कहीं नहीं मिलेगी। आप 10th 12th कभी भी कर लीजिए, नहीं कर पाएंगे। एक बाउंड्रीज नहीं है, कुछ नहीं है, आप राजा हैं अपनी मर्ज़ी के। तो उसका ना आपको फ़ायदा लेना है, आपको एक्सप्लोर करना है, कैसा भी कॉलेज हो, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है। टाइम इन द सेंस कि कुछ भी नहीं कर रहे, घूम रहे हैं तो अच्छा है, जिम जा रहे हैं अच्छा है, सिंगिंग कर रहे हैं, डांसिंग कर रहे हैं, फैशन शोज़ होते हैं जैसे कहीं कहीं, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक्टिविटीज़, क्लब एक्सेट्रा, जैसे जो इवेंट्स होते हैं, जो फेस्ट होते हैं, और जैसे कभी वॉल्टियर्स बन के आपको NGOs में जाना है, या मतलब कुछ भी करना है, ये सब कुछ कीजिए, ये सब कुछ कीजिए। जो मैं जिस चीज़ में आपको मौका मिलता है प्लीज़ कीजिए, क्योंकि ये वो पल हैं जो आप अगर एक बार छूट गया ना तो वो कभी मिलने नहीं वाला है। इतना मेरा कह दिया है, क्योंकि कॉलेज के बाद लाइफ ना भाई सिर्फ लाइफ है,
उसके बाद फिर आप पे डिपेंड करता है उस लाइफ को आप कितना इंगेजमेंट बनाएंगे। लेकिन जो कॉलेज की लाइफ रही है ना, जो इन्जॉयमेंट, जो हंसी मजाक, जो घूमना फिरना, सबसे बात करना, वो सब कुछ बदल जाता है भाई, पूरा बदल जाता है। आपका खाना पीना, रहना, व्यवहार, बातचीत करना सब बदल जाएगा, क्योंकि आप उस जगह चले जाएंगे। आप जैसे अभी थे आप वैसे नहीं रहेंगे। तो आप ये ट्राई कीजिए कि कहीं भी जाएँ तो आप, आपकी वैल्यू हो वहाँ पे। आपको पता है, अगर आप वहाँ हैं तो आपकी वैल्यू होनी चाहिए। तो वो आपकी वैल्यू तब बढ़ेगी जब आपने कुछ चीज़ें एक्सप्लोर की होंगी, आपने एक्सपीरियंस लिया होगा, आपने इंटर्नशिप की होंगी, आप कुछ सीखे होंगे। जो जो लोग होते हैं ना, आपने देखा होगा, जो कॉलेज में स्टडीज़ नहीं करते हैं या मतलब और ना कुछ एक्सप्लोर करते हैं, उनका कुछ नहीं है भाई, उनका नॉर्मल लाइफ चल रहा है। लेकिन एक पहलू ऐसा होता है, एक आप स्टडीज़ कर रहे हैं, आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, तो उनका बहुत इंटरेस्टिंग लाइफ रहती है, समझ रहे हैं। उनको पता है भाई मैं क्या कर रहा हूँ। एक वो लाइफ होती है कि स्टडीज़ नहीं कर रहे हैं लेकिन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका भी बहुत बढ़िया लाइफ होता है। एक वो होते हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडीज़ नहीं कर रहे हैं, मतलब पढ़ाई कर रहे हैं एक्टिविटी, तो वो लोग एक अलग, उनकी भी लाइफ बहुत अच्छी होती है। क्योंकि वो लोगों का क्या है ना, उन लोगों ने ऑलरेडी डिसाइड किया है कि मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो मैं सबके सपोर्ट में हूँ भाई, करिए कुछ भी कीजिए, बस लेकिन आप प्लीज़ अपने आप को ना टाइम दीजिए, कॉलेज में एक्सप्लोर करने में टाइम दीजिए, नई नई चीज़ें सीखने में टाइम दीजिए। कॉलेज है तो कॉलेज है भाई, कॉलेज का जगह कोई नहीं ले सकता है, समझ रहे हैं। कॉलेज जैसा टाइम, कॉलेज जैसा माहौल, कॉलेज जैसा फ्रेंडशिप, कॉलेज जैसा कुछ भी कॉलेज है। देखिए कॉलेज में भी ना एक टाइम होता है यार, एक मतलब कुछ करने का। अब आज आप कॉलेज छोड़ दिए होंगे, आपके पास टाइम नहीं होगा, आप घूम नहीं पा रहे होंगे, आप एक बार सुबह को ऑफिस जा रहे हैं, शाम को ऑफिस आ रहे हैं, इसके सिवा टाइम नहीं है। बस थोड़ा बहुत टाइम मिला तो कहीं रेस्टोरेंट पे खाना खा लिया, उसी में खुश हो गए। तो वो लाइफ नहीं रहती। तभी वो कहते हैं ना भाई, कॉलेज तक लाइफ है, कॉलेज के बाद ना आप लोग रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो जाते हैं, समझ रहे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। फिर आप अकाउंटेबल होते हैं उन चीज़ों का आंसर देने के लिए कि अगर कुछ होता है और अगर कुछ नहीं भी होता है तो वो सब आपको देखिए। मैं बस आपसे यही कहूँगा, प्लीज़ गाइस, आप लोग इन्जॉय कीजिए, कॉलेज को एक्सप्लोर कीजिए जितना कर सकते हैं, अपने टैलेंट को पहचानिए, उसमें टाइम दीजिए। टैलेंट कुछ भी हो सकता है, मेरा ये मानना है। आप जिस चीज़ में अच्छे हैं ना, आप उसमें अच्छे बनिए, 100% दीजिए। तो प्लीज़ इस फोकस से काम को कीजिए कि उसमें आपको मज़ा आ रहा है, वो आपको फ्यूचर में ना जिस मुकाम पे आप पहुंचना चाह रहे हैं आप वहाँ पहुंच जाएं, तो वो आपको हेल्प करेगा, ये मेरा मानना है। लेकिन आपको उस काम को ना 100% देनी होगी, बिना कोई सामने से रिटर्न पाने के, समझ रहे हैं। अगर आप रिटर्न पा रहे हैं तो आप मतलब वो काम खुद अपनी इच्छा से नहीं कर रहे हैं, समझ। तो आपको ना कुछ भी जो काम दिया गया है वो उसमें आपको 100% देना है, तभी वो काम होगा। तो बस यही कहूँगा, प्लीज़ गाइस, just go and explore your college and yourself, participate in good co-curricular activities, anything whatever you guys can do, just go participate, rock on bro, it's college, you know, college is कुछ आगे शब्द ही नहीं लगे। कॉलेज जैसा लाइफ, कॉलेज जैसी लाइफ आपको कहीं नहीं मिलेगी। बाय।